ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، جو خود کو سلطنت کا نہیں بلکہ ساری زمین کا مالک سمجھتا تھا، جس کا لشکر لاکھوں میں تھا۔ یہ ایک عظیم و شان سلطنت کا مالک تھا، لیکن یہ اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کو مار کر ان سے کام لیتا تھا۔ اس کا ڈر لوگوں میں بے حد تھا، اور لوگ ڈر کے مارے اسے اپنا خدا سمجھتے تھے اور اس کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا خواب جس نے بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا، اس کی سانسیں تیز تھیں، پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی۔ وہی بادشاہ جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتا تھا، اچانک خوف میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہی عظیم بادشاہ پانی کی بوندوں کا بھی سامنا نہ کر سکا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ اس کے انجام کی پہلی دستک تھی۔ مصر، اس وقت کی ایک ایسی عظیم سلطنت جہاں کی زمین سونا اگلتی تھی۔ شہر انتہائی خوبصورت تھے، بازار بھرے ہوئے تھے، عظیم الشان محلات تھے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک ایسا شخص جس کا غرور عروج پر تھا، فرعون، جس کی بات صرف حکم نہیں ہوتی تھی بلکہ لوگوں کے لیے ایمان تھا۔ ناظرین، یہ ظلم کی ایسی داستان ہے جس کو بعد میں عبرت بنا دیا گیا اور قیامت تک غرور کو نشانی کے طور پر رکھ دیا گیا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے فرعون کا، جو کہتا تھا، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے مانگو میں ہی مدد کروں گا، میں ہی سزا اور جزا دوں گا۔ ان سب میں ایک ایسی بھی قوم تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کے مرد دن رات کام کرتے تھے اور سارا دن پتھر اٹھا کر محلات بناتے تھے۔ رات تھک کر گر جاتے تھے۔ ان کی عورتوں کو صرف غلام بچے پیدا کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ فرعون یہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ پھر ایک رات ایسی آئی جس نے فرعون کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک ایسی آگ لگی ہے جو مصر کو جلا رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ اس نے فوراً درباریوں کو حکم دیا کہ سارے جادوگروں کو بلایا جائے۔ پھر نجومیوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاریخ بدل ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون ڈر اور گھبرا گیا۔ اس کا غصہ وحشت میں بدلنے لگا اور اس نے ایک ایسا حکم دے دیا جس نے ہزاروں جانیں لے لیں۔ اس نے کہا، بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی والدہ گھبرائی ہوئی تھی۔ تب آواز آئی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، ہم تمہیں اسے واپس لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے بالکل ایسا ہی کیا اور بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ آئیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دور سے صندوق کو دیکھتی رہنا، نزدیک نہ جانا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ صندوق فرعون کے محل کی طرف چلا گیا اور وہاں اس کی بیوی نے صندوق کو دیکھ لیا۔ Servants, retrieve the chest from اس the نے river. حکم دیا کہ صندوق کو دریا سے نکال کر لاؤ۔ جب صندوق کو نکال کر لایا گیا اور اسے کھولا گیا تو ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ ملکہ کے دل میں محبت جاگی اور اس نے بچہ رکھ لیا۔
उसने फिरौन से उसे अपने पास रखने का कहा तो फिरौन ने गुरूर में आकर बोला, ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और यूं अल्लाह पाक ने हजरत मूसा भी की परवरिश उसी जगह से करवाई जहां से आपको मारने के अहकामात जारी हुए थे। फिरौन की बीवी के लिए एक नया मसला पैदा हुआ कि हजरत मूसा दूध नहीं पी रहे थे। लिहाजा उनकी कनीज ने उनके जहन में ये बात डाल दी कि बनी इसराइल से किसी औरत को ढूंढकर लाया जाए जो इस बच्चे को संभाल सके। लिहाजा अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को फिरौन के महल में भेज दिया। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उन्हीं की वालिदा के हाथों से हुई। वक्त गुजरता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वो इंतहाई खूबसूरत थे। अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत सारी ताकतें अता की। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और जब वो अपनी पूरी जवानी और कुव्वत को पहुंच गए तो हमने उन्हें इल्म अता किया। एक दिन बाजार की सैर के दौरान आपने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक मिस्री था और दूसरा बनी इसराइल का। मिस्री बनी इसराइल के आदमी को मार रहा था तो बनी इसराइल के आदमी ने घबरा कर कहा कि है कोई जो मुझे बचा ले। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने मिस्री को मुक्का मार दिया, जिससे वो मौके पर ही मर गया। हजरत मूसा को गलती का एहसास हो गया। उन्होंने फौरन अल्लाह पाक से माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मिस्र ने इन्हें माफ नहीं किया। ये खबर जब फिरौन के पास दरबार में पहुंची तो उसने हुक्म जारी कर दिया, मूसा को कत्ल करके इसकी लाश मेरे पास लाओ। फिरौन ने फरमान जारी किया है कि मूसा को कत्ल कर दो, आप यहां से चले जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए और सहराओं से गुजरते हुए दूर जा बैठे। वहां जाकर आपने अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले। फिर आप चलते हुए मदियन पहुंचे। वहां आपने देखा कि कुछ लोग जानवरों को कुएं से पानी पिला रहे हैं और दूर खड़ी दो औरतें ये देख रही हैं। आप हिम्मत करके उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप दोनों यहां खड़ी क्यों हैं। तो उन्होंने बोला कि हम इसलिए खड़ी हैं ताकि ये पानी पिलाकर हटें तो हम फिर अपने जानवरों को पानी पिलाएं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके जानवरों को ले गए, पानी पिलाया और फिर जानवर वापस करके एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। आपने साये में आकर दुआ की, ऐ मेरे रब, तो जो भी भलाई मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक औरत आई और उसने हजरत मूसा से कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। रिवायत में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने सारा किस्सा सुना दिया। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें जालिमों से बचा लिया है। हजरत शुएब ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें 8 साल खिदमत करनी पड़ेगी और अगर 10 साल कर लो तो तुम्हारी मर्जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त कबूल फरमाई। शादी के बाद हजरत मूसा अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। सर्द रात थी तो आपने दूर पहाड़ पर आग देखी। आपने बीवी से कहा कि आप यहीं रुको, मैं आग लेकर आता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आग के करीब पहुंचे तो देखा वो आग नहीं है, वो हुक्म इलाही है। हुक्म हुआ कि जूते उतार कर आगे आ जाओ और जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी में खास ताकत है, इसे इस्तेमाल करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी ज़बान में गिरा है, मेरे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए
और उसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा। फिरौन ने बड़े मगरूर अंदाज में और हंसकर पूछा, बताओ तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। जिस पर फिरौन गुस्से में आ गया। उसने बोला, जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूं, तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। अपनी सच्चाई साबित करो। फिर मिस्र के बड़े जादूगर बुलाए गए। जादूगरों ने आकर जमीन पर रस्सी फेंकी तो वो सांप बन गया। लोग हैरान हो गए और घबरा गए। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी तो बहुत बड़ा अजदहा बन गई। इस अजदहे ने जादूगरों के सांपों को निगल लिया। जादूगर डर गए और उन्होंने कहा कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की ताकत है। जादूगर सारे सजदे में गिर गए। फिरौन को गुरूर और जख्म और गहरा हो गया। वो चीखा और बोला, ये सब झूठ है, तुम सबका रब सिर्फ मैं हूं। फिरौन ने और खून खराबा शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह पाक ने फिरौन को अजाब की पहली निशानी तूफान और बारिश की सूरत में भेजा, जो सारी फसलों को बर्बाद कर गया। आधा मुल्क डूब गया। लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई। जब तूफान रुका तो लोगों ने अपने घर देखे, लेकिन अभी अजाब खत्म नहीं हुआ था। जो फसलें बची थीं उन पर टिड्डियों का अजाब आ गया, जिन्होंने हर हरी चीज को खा लिया। एक और अजाब भेजा गया जो लोगों के जिस्म पर चिपक गया और उनके जिस्म जख्मी कर दिए। ये सब याद दिला रहा था कि अल्लाह ही वो है जिसके पास हर चीज की ताकत है। फिर उन पर मेंढकों का अजाब आया। इतने मेंढक निकले कि लोगों के बैठने और सोने की जगह न बची और आखिर में दरिया का पानी लाल हो गया, जिसने मछलियों को मार दिया। हर तरफ बदबू ही बदबू थी। लेकिन फिरौन ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है ये सब मूसा का जादू है। अल्लाह पाक ने इन सब का जिक्र कुरान में फरमाया है और ये सब मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में शामिल हैं। फिर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के वक्त अपनी कौम को खामोशी से लेकर यहाँ से निकल जाओ। कौम ने अपना सब कुछ छोड़कर कुछ ज़रूरी सामान लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े। ना उनके पास कोई हथियार और ना तलवारें, बस अल्लाह का सहारा था। सुबह जब ये खबर फिरौन को मिली तो वो मज़ीद गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में आकर कहा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, इन्हें वापस लाऊंगा, मैं उनका पीछा करूंगा। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर किनारे पहुंच गए। कौम ये देखकर घबरा गई। सामने समंदर है और पीछे फिरौन। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हम फंस गए। हम इस पानी में डूब जाएंगे और अगर पीछे मुड़े तो फिरौन हमें मार देगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हजरत मूसा और उनकी कौम ने समंदर क्रॉस कर लिया तो पीछे से फिरौन अपनी फौज के साथ भी आ गया। उसने कहा कि हम भी इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन वो जैसे ही समंदर के दरमियान पहुंचे तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया और वो आपस में मिल गया। फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गया। उसने आखिरी वक्त ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन वो ना ला सका। अल्लाह पाक ने उसकी लाश को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। दूसरी तरफ हजरत आसिया ईमान ले आईं। उन्होंने अल्लाह पाक से सच्चे दिल से मुआफी मांगी और अल्लाह पाक ने उन्हें मुआफ फरमा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का ये वाकया हमें घमंड, गुरूर और तकब्बुर से दूरी का दर्स देता है। ये हमें सिखाता है गुरूर और तकब्बुर जितना भी बड़ा हो आखिर खत्म हो जाता है और अल्लाह पर भरोसा
ताकत और मुश्किल से निजात का सबब बनता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।